में एक्सेस टू पोटेंशियल है। ये देखिए बहुत बड़ी स्कीम है निर्माण की कि 2 करोड़ तक का जो करने वाले किसी भी तो उसको मिलना चाहिए। पहले हुआ करता 20% वो मिलेगा जी प्राइस प्रेफरेंस, मतलब आपने भी आना है फ्लाइट तो उसमें कंसर्न है। सो बाकी का Yeah, good morning, sir. I'm Pooja Puri, representing Vicky Flow, their process. So I'm an interior designer. My brand name is VP Concepts and Designs. And for example, हमारे कुछ members हैं who want to set up a unit. And what will be the process? And what will be the smooth process? कैसे वो लगाएंगे? उनको बहुत मुश्किलें आती हैं. कहाँ जाना है? And moreover, if I am an interior designer, I want to set up a furniture unit. तो क्या मुझे जगह मिलेगी? अगर मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? और अगर मुझे 2-3 साल अगर सिर्फ जगह ढूंढने में और प्रोसेसिंग करने में लग जाएंगे तो when you know I will make my own profit. So out of it. हमारे जम्मू यहाँ पे वीरेंद्र है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाला, अगर आप BSc में जाएं अपनी टीम लेके, यू अंडरस्टैंड द स्कीम और फिर अपने साथियों को भी समझाएं। दैट वाज नंबर 1। नंबर 2 जो आपने कहा, यस वी हैव अ डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट फॉर वीमेन इन उधमपुर, राइट। हमने उसको डेडिकेटेड करा हुआ है, लेकिन ये कि हमारे पास एप्लीकेशंस कम आ रही हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एप्लीकेशन लगा लीजिए और कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद विल प्रोसेस इट। Yes, you can apply time to prepare a DPR, meet, understand the scheme, and as soon as we get the land is transferred. And additionally, I want to say that what kind of additional benefits are going to give to women entrepreneurs. I mean, I'm not talking about the last years. I mean, you are the new face. Already in this year. Yeah. No, otherwise. So we really want something very fruitful for the women entrepreneurs during your chair. Heard about the scheme, but nevertheless, there is no like differentiation on the grounds of incentives being provided to women, or incentives are same. As far as land allotment is concerned, women are given preferential treatment by way of providing 5 extra points. Like because land is given on a merit basis. So wherever you apply for land, other than which is reserved, like in Jammu, it's not reserved. So when you apply that, being a woman entrepreneur, to promote you for land allotment, we provide some extra points to you so that you come a notch higher in the merit list. Otherwise, since the rates of the lands are like decided, but to propel you in the merit, we provide women extra 5 months so that they come in the merit and get the land. Otherwise, where you want, be in Jammu, Badi Brahmana, new land parcel we have identified, just wait for it. But meanwhile, you prepare your DPR, understand the scheme, as soon as, and you apply it online on the portal. All right. Looking forward. Thank you so much. Sure. Virender is a appointment GM DIC Jammu. So you are. आपने कहा कि मिलने का है और इसमें काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है कि फिगर आउट हो जाएंगी. सो आई थिंक माई रिप्रेजेंटेशन इज़ विद यू सर, इफ़ यू सी दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल Ghati and Samba. Firstly, Ghati was promised with 320 megawatts and 160 is only operational there, and a lot of people are waiting जिनके यूनिट रेडी हैं और वो चाहिए. देन सर uninterrupted industry feeder, जो वहाँ industry feeder भी हैं उन पे. Second point is that. Then sir, extension of NCSS application date. This is very hot issue. Everyone is asking you कि ये कब होगा. और हम लोकल हैं तो एक जज्बा रहता है, लेकिन ठीक है पॉलिसी मैटर है. लेकिन अगर कहीं भी जैसे भारतीय की भी बात करें, ठीक है वी डोंट हैव बिग टाइम इन्वेस्टर्स हियर, लेकिन कोई भी कंसोर्शियम लेके कोई कर सकता है, किसने रोका है. लेकिन अगर हम उसको करते हैं तो ये थोड़ा गलत से हो जाए. नहीं सर, मेरी सबमिशन थी कि अगर 15% भी हमारे लिए रखा जाता है एंसराइजेशन को कर रहे हैं. अब अगर वो अभी जो अलॉटमेंट भागथली में है उसके बीच में जहाँ से 200 कनाल के ऊपर के सबको पैचेस दे रहे थे, उसमें से कुछ 50, 80, 15, 20 ऐसा जो बचा हुआ लैंड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल पे हम टेकअप कर रहे हैं कि वो जो बचा हुआ है उसको मैंसिलराइजेशन के लिए यूज करें. वो कोई भी अप्लाई यही किया था. एक चीज है उसकी मार्केटिंग खत्म हो गई लेते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें डाइवर्सिफाई करने के लिए दे एग्रीड. और वो उसका जी वो वी आर टेकिंग अप दैट. वो ठीक है, वो जायज है, वो कर सकते हैं. एक मैं कह रहा हूँ ठीक है, इसको समझाया जाए कि आप बोलो रीता करें, हम करें, कोई करें,
तो उस पे समझाया जाए उनको कि आप कैसे कन्वर्ट हो सकते हो, टेक बेनिफिट ऑफ द हाफ डे सेशन कभी भी रखो, वी आर रेडी, हमारी टीम आ जाएगी एनी डे प्लेस ऑफ नीड ऑफ सर। आई मीन हमारे वाले क्यों रहते हैं जो मतलब नहीं, हम चाहते हैं कि लोकल, उस पर मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं कह रहा कि गलतियां हमारी तरफ से भी हो सकती है, लेकिन उन सबको भूल के कहीं पे हमको कन्वर्ट करना है और लेके आना है। सर वेरी पॉजिटिव सर उस सिलसिले में आप अभी तक वो फैसला नहीं हो सकता। देखो प्रॉब्लम जहाँ पे बस्तियां बन गई आ नहीं रहा है, लोकल तो आ रहे हैं, सर मैं अपना 203 कर So I am Rahul Sahai. I am chairman of PhD Chamber of Commerce and Industry जम्मू चेक। देखिए, आज पहले तो हम डायरेक्टर साहब को और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देते हैं कि ये जो प्रथा शुरू की है कि हर महीने डायरेक्टर साहब इसको हेड करेंगे मीटिंग को, और किसी भी कोई ग्रीवेंस है किसी एसोसिएशन की, किसी इन्वेस्टर की, तो वो उनसे पूछ के उसको हल किया जाएगा। अगर हम बात करें थोड़े ग्रीवेंसेस की, वो ये हैं कि जो लोकल इंडस्ट्री है, हमने ये इनसे किया है रिक्वेस्ट कि वो लोकल इंडस्ट्री को थोड़ा प्रावधान दें, वो जो नए पैकेज का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं उसको वो ले पाएँ। और देखें, जैसे घाटी में यूनिट लग रहे हैं पावर की, वहाँ पर अभी इस वक्त 320 मेगावाट की प्रॉमिस उनको की गई थी और अभी 160 है और 116 पाइपलाइन है। तो ये छोटे छोटे इश्यूज जो है आज फ्लैग हो रहे हैं इनके सामने। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको जीएसटी रिफंड टाइम पे नहीं आ रहा है, और हमेशा ये कहा जा रहा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये ट्रेजरी को भेज दिया और ट्रेजरी से बिल नहीं क्लियर हो रहे। ऐसे ही काफ़ी मुद्दे हैं जो जिन पे आज चर्चा यहाँ पर हो रही है, और दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। एक हमने और बड़ा इनको कहा है कि जो इंडस्ट्री के साथ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, लाइक पॉल्यूशन, पावर, और जो भी आप डिपार्टमेंट इनके साथ लगा लें, उन सबको भी यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। अगली मीटिंग में कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने हमें एश्योर किया है कि सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स भी बैठेंगे और जो भी प्रॉब्लम सामने आएगी उसका साथ साथ सोल्यूशन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज़ में बिकॉज अभी क्या है कि इंडस्ट्री सेटअप हो रही है और नई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बन रही हैं, सहयोग ठीक है जी। कि आज हम देख रहे हैं कि हर महीने मीटिंग होना, तो ये सहयोग ही है। गोयल है और मैं एक कठुआ में इन्वेस्टर हूँ। मेरी कंपनी का नाम है पॉलीमेट फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले मैं पूरे प्रशासन, गवर्नर साहब और सेक्रेटरी साहब सबका और अपने अरुण जी का सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। इतनी अनुकूल, इतनी कंड्यूसिव पॉलिसीज़ जो सर और पूरा प्रशासन लेके आया है, ये पूरे एरिया और पूरे इंडस्ट्री को उठाने के लिए है। ये वही चीज़ है जैसा चाइना ने आज से 25 साल पहले, 40 साल पहले जो किया था और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया था, और वही चीज़ अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सेम हो रही है कि सरकार, पूरा प्रशासन, सारी उद्योगपतियों को, सारी इंडस्ट्रीज़ को इतना प्रमोट कर रहा है। और यहाँ तक कि डायरेक्टर साहब एक एक चीज़ पे और पूरा डिपार्टमेंट एक एक चीज़ पे एक एक इन्वेस्टर के साथ बात करता है, उसकी ग्रीवेंसेस सुनता है। आज की मीटिंग ये दिखाती है कि कितना एक्टिव है हमारा प्रशासन। और जो भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो पॉलिसीज है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, सेल ग्लोबली, वो सारी अब चीज़ें उनके ये बुनियादी स्टेप्स होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे सरकार टेक्नोलॉजी रिफॉर्म कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, वंदे भारत कठुआ में रुकती है, वंदे भारत चालू हो चुकी है, नया कटरा का हाईवे शुरू हो गया है जो पूरे हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर को जोड़ रहा है। ये सब चीज़ें एक एक ईंट है एक बड़ी इमारत बनाने के लिए। वो इमारत एज अ ग्लोबल सुपर पावर इंडिया को बड़ी करती हुई दिख रही है हमको। और कुछ ग्रीवेंसेज हैं जो कि टाइमली सॉल्व होते जा रहे हैं, और कुछ हम सबके सामने रखेंगे, प्रशासन के सामने रखेंगे। बाकी बड़ा कंड्यूसिव, बड़ा अनुकूल एनवायरनमेंट है, और ऐसे चलता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो मोदी जी का सपना है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। थैंक यू। देखिए, ये पिछले महीने जब गवर्नर साहब ने इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमैंट का रिव्यू लिया था, तो उसमें ये हिदायत दी थी कि जो डायरेक्टर्स हैं रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस की, वो इन्वेस्टर्स के साथ हर महीने में एक बार वो मिलेंगे, उनसे उनकी ग्रीवेंस सुनेंगे और उनको रिड्रेस करेंगे।
तो आज इसी कड़ी में आज हमने इन्वेस्टर्स मीट करी, जिसमें उनको पॉलिसी के बारे में समझाना, उनके जो ग्रीवेंसीज हैं उनको नोट करेंगे, जो हमारे स्तर पे जो ग्रीवेंसीज उनके दूर हम कर पाएंगे उनको करेंगे, और जो पॉलिसी लेवल मैटर्स हैं जो सरकार को भेजने हैं, विभिन्न विभागों के जो मैटर्स हैं हम उनके साथ टेकअप करके उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी कड़ी में आज आपने देखा कि हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान जितने भी हैं सारे हैं, जो कठुआ सांबा से जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके भी इंडिविजुअल ग्रीवेंसीज होंगे और वो भी आ पाएंगे और अपने ग्रीवेंसीज हमको बताएंगे। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए अभी तो चल ही रहा है, लेकिन जो मूलतः जो मेन जो डिमांड है कि एक तो कई इन्वेस्टर्स हैं उनको ये डर है कि शायद सितंबर में पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी, उसको बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि किसी के इशू ज़मीन के रिलेटेड है, किसी के इशू पावर के रिलेटेड है, पोल्यूशन के रिलेटेड है, वो सबका संज्ञान लिया जा रहा है, नोट करके जितने भी विभागों के वो मसले होंगे हम उनको टेकअप करेंगे। अरुण जी, अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, कितना फीडबैक आपको पॉजिटिव मिला है, कितना नेगेटिव फीडबैक? आपने देखा हमारी एक महिला सदस्य थी फिकी फ्लो की, जिन्होंने ग्रेटिट्यूड दिखाया हमारे प्रति। देखिए कभी भी अगर किसी भी सिस्टम को सुधारना है तो वो एक प्रोसेस इन कंटिन्यूम है। आप ओवरनाइट किसी भी सिस्टम को आप ओवरऑल करके परफेक्ट नहीं बना सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का परफेक्ट सिस्टम है, लेकिन ये जो संवाद है, जो ये एंगेजमेंट है इंडस्ट्रीज के साथ, वो लगातार हम करते जा रहे हैं, ताकि हमको कहाँ पे ठीक होना है, हमारी अपेक्षाएं क्या है उनके साथ, उनको कहीं पे मिला के ठीक करके आगे बढ़ा जाए, और जम्मू कश्मीर की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो गाथा लिखने जा रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। तो युवाओं के लिए इन फ्यूचर क्या आने वाला है? देखिए स्टार्टअप पॉलिसी हमारे यहाँ पे है, बेहतरीन स्टार्टअप पॉलिसी है, और युवाओं के लिए उसमें 250 करोड़ का फंड का प्रावधान भी है, वेंचर कैपिटल का, और एंजल इन्वेस्टर्स का भी है। तो हम चाहते हैं कि जम्मू का जो युवा है वो आगे बढ़कर एक जॉब वो मेंटेलिटी छोड़ के एंटरप्रेन्योरल डील को लेकर अगर आता है तो सरकार के पास बहुत कुछ है उसको देने के लिए, उसको एक स्टैंडिंग देने के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं सरकार उसको देती है। अरुण जी, आपने कितना देखा होगा कि जब से आपने शुरू किया है तब से युवा जो है वो कितना बढ़ चढ़कर जो है वो इसमें भाग ले रहे हैं? देखिए इन्वेस्टमेंट कहीं भी आती है, इन्वेस्टमेंट अपने साथ नौकरी लेके आएगा। अभी आपने कुछ दिनों में भाग चली की अगर मैं बात करूं, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 4,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहाँ पे, और जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो नौकरी तो लेके आएगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ कि गवर्नर साहब ने पिछले दिनों बिलावर में एक BPO सेंटर एटॉमिक नॉर्थ करके इनॉग्रेट किया था, और आप देखिए वहाँ पे 350 के लगभग मुलाजिम रखे थे, जिसमें कुछ कठुआ के लोग भी थे और कुछ बाहर के भी थे, और उसका एक डोमिनो इफेक्ट पूरे इलाके में हुआ है। उनके रेंटल्स बढ़ गए, वहाँ पे ढाबे बढ़ के आ गए, किराए पे लोग मकान देने लगे। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आएगा उस एरिया की इकोनॉमी जो है ना उसमें काफ़ी बूम आ जाता है। तो आप कभी आपका विजिट अगर कठुआ में होता है, इन इंडस्ट्रियल एरियाज में होता है, आप देखेंगे किस तरह से नए होटल्स, नए रेस्टोरेंट्स ये उभर के आ रहे हैं।